everybody. Never doubt a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has been done. So, today, our speaker on Against All Odds is Mumbai's River Man. And this is Megha Pitwa, your host for the day. He's the winner of Mumbai Heroes, an initiative by Mumbai Mirrors. Is recognized as a Jal Raksha by the Minister of Jai Shakti, a Department of Water Resources. Today he'll be joining us. He's also done, rejuvenation of Ganga, a Government of India event. So let's welcome Gopal Zaveri ji. Please, sir, join us. हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार सर, थैंक यू, आप हमारे शो में आए, इसकी रौनक बढ़ाई हमारे शो की, और आज आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पूरी दुनिया सुनेगी. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. सर, नेचर के लिए जो आप कर रहे हैं, आई थिंक नॉट ओनली मुंबई, ये पूरा इंडिया इंस्पायर होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द रिवर्स इन मुंबई, बिकॉज ये हमारा मेन मोटिव मुंबई के ऊपर है. तो बहुत सारे लोग, बच्चे एंड द यंगस्टर्स, द यूथ आर नॉट अवेयर ऑफ रिवर्स इन मुंबई. वहां से शुरुआत करते हैं. I will give you a small brief about the complete environment of Mumbai. Mumbai is overall 400 square kilometer city, and out of that 104 square kilometer is Sanjay Gandhi National Park. That means 1/4 of Mumbai is forest still. So if you see that in from Sanjay Gandhi National Park right now 4 rivers are coming, that is Daisar, Poishar, Oshwira and Mithi. And all these 4 rivers ultimately ends into the mangroves at Burai, Chapko, Lokhandwala and Mahi. And definitely it goes to the end in the Arabian Sea from Mumbai. Now, Mumbai is the only city in the world which is having a forest with the hills, rivers, mangroves and the sea, which is span of just 3 kilometers. And this is the complete ecosystem is there in the city. And you will surprise it is the forest is not a small forest which is having a world's largest leopard population. Dense leopard population is in the Mumbai. So in the small area, the numbers of leopards are much more than the normal. This forest is having a 162 species of butterflies, which is not there in entire UK. A smallest wildcat is also in Mumbai. Apart of this, more than 265 species of birds, which is there in Mumbai. And this entire region of Sanjay Gandhi National Park and Mumbai system, which is located in Sahyadri range. So the second highest footfall next to Cherrapunji is in the Sahyadri range. So this forest is very beautiful during the monsoon, and all these 4 rivers during the monsoons comes out. But because of unplanned development of the city, all these 4 rivers are biologically dead. So it was time to revive this. What is the benefit of this rivers that we all know, but the urban benefit of this river is totally different than the normal river benefit. So what will be these 4 rivers if we rejuvenate the benefit? First is ki if I talk about the Daisar river, when we started the project, in some of areas the groundwater level is fall from 150 feet to 500 feet, and all the surrounding wells on the record there is a 1500 plus wells in the Daisar region. All maximums are dried or the water is not of quality. But if you we started rejuvenating around 1 kilometer of river, and all the areas the water level comes up, the well started recharging again. So that will be the biggest benefit of increasing the water level in the city. This increasing water level not only benefit our wells and the boring,
but it will also help to revive the green areas and the green patches, which ultimately helps the wildlife of the city, the birds of the city. A part of this, if you see the location of Mumbai, which is connected through a Dahisar checkpost or, of course, to Vasi or Airoli Mulund. So if it is disconnect because of earthquake or because of war or some other area, there is no other water resources. We depend on the outside. So at least not a potable water, but for the initial stage, we get this water for any other purposes also. So reviving of all four rivers is very important for Mumbai and the financial benefit. Every year, Mumbai Municipal Corporation, for the name of resulting, using 700 crore rupees. And that is a big amount. If we revive this river, the tenders comes out around 100 crores to rejuvenate all fair rivers, and the cleaning cost goes to 700 crore. So you will surprised to know if we revive forever, this river will not only benefit the environment but a financial benefit. Plus the surrounding area where you can create a gardens, what the river become a backyard of your house, become the front area. And just like Thames or just like any city rivers in the Paris or in the Korea, we can have a beautiful rivers across the Mumbai. And the final one thing I want to add in the Mumbai environment, that is the nalas. Basically, people thinks when we talks about nala, people thinks there is a something to dump. But if you go into the deep meaning of nala, which is derived from the Urdu or Punjabi word, which is taken into the Maharashtra by Britishers, the nala means a embryo cord, which is a child is connected with mother. The same Yes. way the nala is for connecting the forest to the river. So all nalas, because of the different hills coming to the Mumbai river, but unplanned development of the city create in a such a way that they discharging their water, wastewater or the solid waste into the nalas, and because of that the river is also get it polluted. So we have to understood the nala, and because of the continuous effort of river Mar, now the nala is also a part of river system. So Nala is no more, and because of the people understood in Mumbai, the Nala is something to dump, but it is not fact. So this is the entire ecosystem, and we should proud. And even in Mumbai mangroves, our mangroves is as beautiful as Sundarban. Sundarban is having a 18 mangroves. We are having a 9 mangroves, and still in this mangrove, the golden jackal and the fishing cat is living. And in spite of we treated so badly our nature, but still dolphin is visiting Mumbai in a December. Every December you can see. And the extraordinary marine life of Mumbai, just even though हम लोग ने nature को इतना किया, but nature is giving us so blessing to the Mumbai. All these are still intact if we revive, and this is the thing through a river man we want for Mumbai. Wow. Wow. तो सर कुछ ऐसा एपिसोड हुआ था, समथिंग ट्रिगर्ड फॉर रिवर कंजर्वेशन कैंपेन, so we would like to know that what triggered. See, there's two areas which I want to share with you. One is one of my client and a friend, Mr. Kamal Kothari, came to my office one day, and we are planning to buy some properties in the Kopan area for the farmhouse. And he asked my father, what you are taking in this age? तो उन्होंने बोला, there is a Sanjay Gandhi National Park, go and see. So I remember the first May 2011, हम लोग ने सुबह, because last I went to Sanjay Gandhi National Park जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई. So in 20 years I never been to there, even though I living just touching to the Sanjay Gandhi National Park, पर अंदर नहीं गए. और उस दिन हम गए, सुबह सुबह एक मरा हुआ हिरन मिला और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके गए. एंड नेक्स्ट डे बाय क्यूरियोसिटी वी आस्क्ड टू द डिपार्टमेंट, और उसकी बॉडी में से 3.5 किलो का प्लास्टिक का गुच्छा निकला. एंड ही सेज कि ऐसे 5 मेल डियर सांबर डियर थे, उसमें से एक मरना ये बहुत बड़ी बात है फॉरेस्ट के लिए. सो वी सेड कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड फाइटिंग, लेट्स डू समथिंग.
So that was our first initiative. We started a plastic project to remove the plastic with myself, Mr. Kamal Kothari, and Dr. Nikita Kothari. And Mhm. slowly, people start joining with us, and groups start expanding. We started a cycle project. One day, the Bajrang met me in the tree, and we says ki we are doing this project for removing plastic on every Sunday, and for last 1.5 year we are every day Sunday morning we are going there and do, but it will be not connect with the entire Mumbai, so let's plan something. And this way we planned, we start searching for something, and we says ki let's plan a Olympic for Mumbai. And in this Olympic, we divide the entire areas into 5 different portions. And one of the circle we says ki Mumbai environment. And this way, the river march, not exactly the name river march, but environmental sectors comes into the area. And then we make a documentary on the Isar River first with Mr. Anand Uddesi. So he helped me a lot and Mahesh ji. और जैसे वो डॉक्यूमेंट्री खत्म हुआ तो हाउ टू कनेक्ट द पीपल, तो वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज द रिवर रन ऑन द रिवर फ्रंट, बट देन वी थॉट कि इसमें से तो लिमिटेड लोग जुड़ेंगे और इसका एक्सपेंशन भी ज्यादा नहीं होगा, तो लेट्स कम विद एवरीबॉडी, देन वी कम टू अ रिवर वॉक। तो वो भी आइडियाज कुछ नहीं हो रहा था, एंड उसी टाइम पे मार्च आ रहा था, तो वी कनेक्ट रिवर मार्च एंड दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, and we Wow, connected entire initiative this way. super. So this is the way River March comes into existing on 1st March 2014. Lovely. Lovely, sir. So tell us more about how did you, work on the conservation campaign, the river conservation campaign? See, basically मैंने कुछ नहीं किया है, जो इसमें से पूरा और है ना वो लोगों ने किया है, because so much people connected with the project, so much people loves Mumbai with the patients, जो जिससे जिससे हमने बात की वो आगे आना शुरू हुए। वो रिवर मार्च में जब हम लोग 2 लोग थे, 2 के 4 हुए जब भी मार्च में, और जैसे रिवर मार्च खत्म हुआ था हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट टीम बन गया था 6 जन से पूरा 25 लोगों। Wow. And the numbers of groups in the Borivali, Daisar and Kandivali region connected with us. लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस हेल्प नहीं करते, अपने म्युनिसिपल ऑफिसर्स हेल्प नहीं करते गवर्नमेंट पर। वी गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बीएमसी, फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, और हमने किसी से दूरियां नहीं बनाई। it's a game for all parties, it may be Shiv Sena, it may be BJP, कांग्रेस और MNS। हमने हर एक के साथ में काम किया, और आज बहुत सारे अच्छे लेवल के कमिश्नर्स लेवल के ऑफिसर्स रिटायर्ड होने के बाद मुंबई मार्च टीम के साथ है, डेप्यूटी डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं, बहुत सारे आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज अ लॉट ऑफ हेल्प, एंड दैट इज द ओनली कि नॉर्मली क्या होता है कि बॉलीवुड थिंकिंग था कि कुछ भी चीज हो गई तो हमको क्या है कि पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाना, ऑफिसर्स तो काम के ही नहीं है म्यूनिसिपैलिटी वाले, और ये सब था। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट अ फैक्ट, बट हमको काम उसी के साथ करना है, उसी को लेके चला। यू कांट रिमूव द पॉलिटिशियंस और द डिपार्टमेंट फ्रॉम योर लाइफ एंड यू कैन वर्क। सो हम लोग ने फर्स्ट डे से हमारा ये था कि हम एजिटेशंस करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फास्ट करना और झगड़ा करना, सत्य का आग्रह रखना। Correct. तो अपने यहाँ पे गांधी जी का सत्याग्रह के बाद वो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया कि सत्याग्रह में झगड़ा करना वो ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था, पर अभी का सत्याग्रह का मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हमको सत्य की डिमांड करनी है कि सत्य के साथ चलना है। तो बस हमने वही किया, और ना हमने इसमें कुछ नया किया है ना कुछ है। पर हाँ, मैं ये बात बोलूंगा आज के जमाने में कि लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं है नाम के लिए एक दूसरे के बीच में, पर मेरा नाम प्रपोज करने में मुंबई हीरो के लिए, या मेरे लिए वोटिंग कराने के लिए, या जैसे आज इस प्रोग्राम में लाने के लिए अविनाश ने जैसे हेल्प किया, हर लेवल पे हमारे ग्रुप में लोग एक दूसरे को सपोर्ट, ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जिसने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। सो दिस इज द वे
without any money. We're not having any account, any NGO, any connectivity. It is just like Dandi March. People comes, people works, and they go away. Mhm. So this is the way the River March was comes in existence. There was a back in the mind to develop further about the Road March, the Zero Slums Mumbai, and the Golden Sparrow. So हमारा final logo पहले से ही डिजाइन था as a Mumbai March, पर right time हम सोच रहे थे, and this March last जो first March को हमने फिर finally Mumbai March as a combined effort, because if you see कि environment की जो मुंबई की हालत है, that is because of Mumbai's infrastructure, और मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंडीशन है that is because of slums, और slums जो है वो actually unplanned development है. We can't give a blame to everybody, we all are equally responsible, so we have to come with that solutions of zero slum. Or finally it is a financial capital, so we have to see the economy for the prosperity. So that is the entire project. Finally comes the Mumbai March from River March. क्या बात है सर, मतलब पूरा बोलते हैं ग्रीन क्लीन सिटी मुंबई, एंड यू विल बी स्प्रेडिंग स्माइल्स ओवर द मुंबई सिटी. That's your project, and it is our project, not only your project now. Yeah, We all will be get associated, we will be associated with you. thank you. मुझे आपने मुझे बताया कि मुंबई हीरो के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. व्हाट इज दिस? बिकॉज हमारे पास मुंबई हीरोज, यू आर द सेकंड मुंबई हीरो हु हैज जॉइंड इन आवर एपिसोड. Okay. सो थोड़ा सा उस अवार्ड के बारे में हमको अवेयरनेस दीजिए. See, मुझे कुछ पता नहीं था ये अवार्ड के बारे में, क्योंकि on the 15th of August हमने एक रन किया था from गांधी मंदिर बोरीवली to Gateway of India, and that is the first we are talking about Mumbai Olympic. और that run is about कि हमने खुद ने ही अपनी मसाल जलाई और हमने ओलंपिक लगा दिया, किसी को पूछा नहीं. और मैंने खुद उसमें से 42 किलोमीटर्स में से I ran around 32 kilometers on that day, and we all came back through the train. But suddenly on 24th of August I got a brainstorm. So now the situations comes very dicey. My family who is worried about me, my friends, और सब लोग का एक ही था कि जितना हार्ड वर्क हम लोग रिवर मार्च के लिए करते हैं, अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, लिव द रिवर मार्च. अभी मैं तो आईसीयू में था, और जो भी मेरे पास आता था, एंड इट्स ओनली वन थिंग, डोंट टॉक अबाउट रिवर मार्च. बट रिवर मार्च से मेरे को इतना फायदा हुआ कि जिस दिन मैं आईसीयू में था, हॉस्पिटल के नीचे 100 लोगों से ज्यादा लोग आ गए थे, और डॉक्टर मेरे को बोलता है कि तुम कोई हस्ती हो. बोला सर मैं तो कुछ नहीं. तो बोले इतने लोग तो कोई पॉलिटिशियन होता है तो ही आते हैं. तो मैं बोला मेरे साथ क्या होगा? बोला तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, बिकॉज इतने लोग नीचे खड़े हैं, मैं भी क्या ले लूंगा तुम्हारे से. सही बात है. तो बोला ये देख के मेरे को डर लग रहा है. तो इन द एज ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स, आई गॉट सो मच लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद मी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ रिवर मार्च. और उस बीच में Mr. Avinash Kubel, the Deputy Director and of Maharashtra Nature Park, and he is also Mumbai Hero 2015. He nominated me for this, and I got a call from Mumbai Mirror, and she taken my interview and the video, and I came into the list. And from our group with Maheshji, Bajrang, or Tejas Shah, they worked so hard for getting a vote for me in this area. So वो लोग रात दिन काम करते थे, and suddenly one day the call comes for Mumbai Mirror कि you are selected as a Mumbai hero, as a riverman of Mumbai. So this award, I truly believe from my heart, is nothing for me. It is only because of my team who really works so hard. मैं तो एक्चुअली आईसीयू से आया था, हिलने नहीं दे रहे थे, पर ये अवार्ड का मेरे से एक मतलब जो और आपका जिस चीज पे बात कर रहे हो कि मुंबई में कोई नदी को नदी नहीं मानता था, बिल्कुल, और ये कभी भी साफ होएगी ये बिलीव नहीं करता, और मुंबई में कभी भी चेंज आएगा उससे लिए लोग हार चुके थे. तो जब मेरे को ये अवार्ड मिला, मेरे को सपोर्ट इतना बड़ा, people become optimistic कि now the thing is possible.
और मेरे को जो लोगों ने आईसीयू में बोला था कि काम नहीं करना आज के बाद, मेरा फैमिली से जो बहुत ही सपोर्टिव है, और बोला कि नहीं करना, वहां से मेरे को एक थोड़ा सा पुश मिला, सपोर्ट मिला। जो लोग मेरे पे बहुत हंसते थे, बोले थे ये रोज संडे सुबह नाला साफ करने जाते हैं। पीपल चेंज माई सरनेम फ्रॉम जवेरी टू कचरा वाला। तो बहुत सारे लोग हंसते थे जब भी बिल्डिंग्स में जाओ, क्लब में जाओ, ग्रुप में जाओ, कॉलेज के ग्रुप में, तो पीपल स्टार्ट लाफिंग। तो ये सब के बाद जब वो अवार्ड आया तो पीपल आर बिकम आशावादी, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हो गए। बट आई एम सेइंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, दिस इज द फ्रॉम द एंटायर टीम हु वर्क्स वेरी हार्ड। इज नथिंग टू मी कि मैंने कुछ नया किया हो या समथिंग और some extraordinary thing. This is the people, the team of River March, Mumbai March is did this. Very nice, sir. Hats off. It's like team work ही आगे ले जाता है हर किसी को। एक अकेला इंसान सोच रख सकता है, बट उसके साथ में जब एक मुहिम जुड़ जाता है तो ही चमत्कार होने लग जाने होते। तो सर मुझे आप बताइए एक कि लेटेस्ट न्यूज है जो सितंबर 2 को अनाउंस हुई 2020 को कि दैट सीएमओ ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस 600 acres ऑफ आरए लैंड नियर संजय गांधी नेशनल विल बी रिजर्व फॉर फॉरेस्ट। उसके बारे में आप आप हमारा डॉक्यूमेंट्री देखेंगे 2013 का, वी क्लियरली डिमांड, दैट वाज द फर्स्ट डिमांड। और मैं ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट देयर वाज वन officer from the forest is my personal friend because of this plastic, and उसने मेरे को एक आइडिया दिया कि जंगल बढ़ना चाहिए मुंबई का, and the only option is a RA, and I worked on Google, इधर उधर से सर्च किया, because I am you people all calling me environmentalist, but I am nothing to do with environment before 2011। तो मैंने पूरा स्टडी किया उस चीज के बारे में, और फिर उस डॉक्यूमेंट्री का जब मैंने आउटलाइन स्क्रिप्ट बनाया, उसमें मैंने उस पॉइंट को रखा और मैंने उन ऑफिसर से बात किया कि ये चीज कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि इट्स पॉसिबल इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम जमा किए, और जब भी हमको चांस मिला, जब हम आदित्य जी को मिले, जब हम फडणवीस जी को मिले, या जहां जहां पे हमको उस बात की चांस मिली, हमने एयर स्पेस में वो बातें रखी, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स के सामने वो बातें रखी। तो दिस इज द फर्स्ट गुड थिंग which we highly appreciated to Mr. Aditya ji as well as the government who taken this. But this is a very small winning part. Entire area is 3,200 acres, and according to us, 200 acres they needed for car shed. Let it that it a disputed area, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, that is a separate part. So let's consider कि वो 200 एकड़ आपको चाहिए। लेट्स टेक कि वहाँ आदिवासीज है और उसको छोड़ के कुछ इंस्टीट्यूशंस है और रोड है, आपको 400 एकड़ का जगह आपको चाहिए। देन आल्सो 2,800 एकर्स का आरे बचता है, उसमें से आपको 600 एकड़ आपने हमको दे दी, अभी भी 2200 एकड़, तो आपको क्या करना है? दैट इज नॉट क्लेरिफाइड बाय द गवर्नमेंट। वी वांट दिस 2,200 acres land for our leopards, for our butterflies, for our people to get oxygen। क्योंकि आज सुबह हमने बहुत रिसर्च किया कि ऑक्सीजन लेवल कम है, ओजोनाइजेशन होता नहीं है, ओजोन लेयर ये है। तो 2-3 बुद्धिजीवी और इंजीनियर्स लोगों ने हमको आज सुबह बहुत सारी चीजें गाइड की, पर ये तो रेडीमेड फॉरेस्ट है हमारे पास। सो लेट्स टॉक अबाउट 600 एकड़ तो हम दे रहे हैं, वी आर वेलकमिंग, थैंक यू सो मच। जो मुंबई का 70 इयर्स का हिस्ट्री में हुआ नहीं है वो होने जा रहा है। तो वहां पे 9 से ज्यादा लेपर्ड्स है, नंबर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज और प्लांट्स है। एंड मेगा जी यू विल सरप्राइज कि मुंबई का जो फॉरेस्ट है उसमें 1500 स्पीसीज से ज्यादा प्लांट्स है, which is highest in the world, in world। Second highest is in Kenya, that is only 650 species। So we having more than double of species in Mumbai of a plants। So that much अवेयरनेस ही नहीं है सर, ये सीरियसली इस अवेयरनेस की जरूरत है। आई थिंक बच्चों को, आजकल के यूथ को भी नहीं पता होगा ये सारी बातें। यस,
किसी को नहीं पता कि हमारे पास इतने कंटेंट्स है कि जिसको अभी लास्ट मीटिंग हमारी बिफोर द लॉकडाउन आदित्य जी की बात हुई थी, जिसमें हमने गिलबर्ट हिल की बात की थी। अंधेरी स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस में गिलबर्ट हिल है। 63 मिलियन ईयर्स ओल्ड हिल है। वर्ल्ड में ऐसे 2 ही हिल है, वन इज हियर एंड अदर इज इन यूएसए। आज हम उधर इतना गंदा कंडीशंस है कि वहां आप जा नहीं सकते। वो पूरी की पूरी जो हिल है उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज इतना अच्छा टूरिस्ट पॉइंट और बाकी का एरिया, लोग उसको देखने को आ सकते हैं। सो मच रिचनेस इज इन मुंबई। और आरे जैसा तो जो जगह है उसको हमारा डिमांड ये है कि फर्स्ट इट हैज टू बी कंप्लीट। 2800 acres is a part of Sanjay Gandhi National Park, जो सेक्शन 4 में दे आर वांट्स टू डिक्लेयर, दे आर वेलकमिंग दिस। बाकी का जो 2200 है वो भी फॉरेस्ट डिक्लेयर होना चाहिए। और उसके बाद जो भी फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट है, वो जो भी संजय गांधी नेशनल पार्क है वो भी आर एरियाज पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो वी आर वेलकमिंग दिस, बट वी आर स्टिल ऑन for rest of 2200 acres to be declared as forest. Yes sir, we will hope for the best and हम सब जुड़े हुए हैं। I think सबकी पॉजिटिव होप्स है। Let's do it. Yes. इसके साथ में मैं, आपके एक दोस्त हैं जिनका नाम आपने जिक्र किया था अभी, बजरंगी जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। बजरंगी भाईजान कोई भी चीज किधर भी लेके जा सकते हैं। हाँ, बजरंगी भाईजान नमस्कार, आपका स्वागत है अगेंस्ट ऑल ऑड एपिसोड, स्पेशल एपिसोड जो हम एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। रिवर मार्च है, रोड मार्च है, जीरो स्लम्स है। आपका एंड गोपाल जी का कैसे रिलेशनशिप बढ़ा, और मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कैसे बढ़ गया कि आज आप साथ में हैं दोनों? ये शुरू हुआ था कि गोपाल मुझे ट्रेन में मिला था, और उसके पहले मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं संडे को उठता था 11 बजे। तो गोपाल ने बोला कि मुझे 7:30 बजे नेशनल पार्क में मिलना। तो फर्स्ट संडे को गोपाल ने मुझे पूरा नेशनल पार्क बहुत अच्छे से घुमाया। वहाँ पे जो ग्रीनरी है वो दिखाई, और वाटर है वो सब दिखाया। तो मुझे बोला नेक्स्ट संडे आएगा, बुलाऊंगा नेक्स्ट संडे भी। नेक्स्ट संडे से इसने मुझे काम पे लगा दिया। और वो संडे और आज का संडे, मतलब हमको कम से कम 9 साल हो गए हैं। 9 साल में हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं हर एक प्रोजेक्ट में। और गोपाल हमेशा इंस्पायर करता है, मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट लेके आता है जो ऐसे लगता है ये थोड़ी पॉसिबल है। जब उसने पहली बार बताया कि बॉम्बे में 4 नदियाँ थी और इसको क्लीन कर सकते हैं, तो पहले सवाल यही आता था कि 4 नदी कौन सी है, और लोग कैसे बताएंगे कि हम 4 नदियाँ बॉम्बे में है और वो क्लीन कैसे हो सकती है। तो इसका जो तरीका है सोचने का, मतलब ये ऑलवेज थिंक्स लार्जर देन लाइफ, मतलब अलग ही प्रोजेक्ट लेके आएगा जो लोगों को लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है या पता ही नहीं है। तो वहाँ से जब शुरू किया तो नेशनल पार्क में हम लोग ने मिलके 80,000 किलो प्लास्टिक नेशनल पार्क से निकाला था, और नेशनल पार्क को पूरा प्लास्टिक फ्री बनाया। हमारे साथ में और भी हमारे दोस्त थे जो जुड़े थे, और वहाँ पे कुछ सीमेंट के पाइप्स पड़े थे अंदर, जो नेशनल पार्क अथॉरिटी फेंक नहीं पा रही थी क्योंकि फेंकने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। बिल्कुल। तो हमने वो पाइप्स को काट के, सीमेंट के पाइप्स को डस्टबिन बना दिए। 100 डस्टबिन नेशनल पार्क में लगा दिए। अरे वाह। हाँ, तो आज भी कुछ डस्टबिन है वहाँ पे अवेलेबल। तो ये सब बाद में मुंबई मार्च का रिवर्स का हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया। तो आज आप देख सकते हो कि विजिबल डिफरेंस है मुंबई के अंदर रिवर्स का। आज लोगों को चारों ओर रिवर के नाम मालूम है। तो जब रिवर को हम रिवर के नाम से बुलाते हैं तब रिवर वो ऑलरेडी जिंदा हो चुकी है। अब बाकी तो जैसे एक चेक डैम बन गए तो अभी जो बाकी का प्रोजेक्ट है वो बहुत इजी हो गया करना। तो इस तरह से रिवर मार्च शुरू हुआ, उसी तरह से रोड मार्च हुआ। आज जीरो स्लम्स का जो प्रोजेक्ट है, अगर आज जीरो स्लम्स मतलब रियलिटी रखती है। जब व्हेन गोपाल स्पीक्स, ही स्पीक्स विद नंबर्स। तो व्हेन ही स्पीक्स विद नंबर्स तो लगता है नहीं यार ये तो पॉसिबल है, दिस नॉट अ वेरी बिग फिगर, ये तो हो सकता है। तो he will always come and he will talk with numbers, so which is like which is very inspiring. तो for me Gopal is like modern Gandhi. तो तो मेरे लिए तो मैंने तो महात्मा गांधी को देखा नहीं है, बट for me Gopal is Gandhi because he'll always say this is possible, और वो फिर पॉसिबल हो जाता है। तो this is how I met him and he's a very dear friend of mine.
तो प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द वेज वेयर वी मेट, और अभी तो हमारे मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशन है, एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ नेचर एंड इट्स गोइंग गुड नाउ। तो आपकी नींद खत्म संडे की, संडे की और नींद आपका खत्म कर दी है। तो इतना कंस्ट्रक्टिव काम में अपनी अपनी नींद सैक्रिफाइस करिए, तो आज आप भी प्राउड फील करते होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि 2011 में मिला तो मुझे उसने एक्चुअली जगाया, मैं आई वुड से। अगर इसी तरह से हर मुंबईकर जागता है तो सही बात। हमको फिर ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो ऐसा सोच नहीं सकते, तो हमको सबको जगाना है। आज गोपाल ने मुझे जगाया, जो मैं 5-6 घंटा एक्स्ट्रा सोता था उसके बदले अगर कंस्ट्रक्टिव काम में गया है। अगर हर मुंबईकर, रादर एवरी इंडियन अगर जागता है, तो रादर देन कंप्लेनिंग कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, अगर हम काम करना शुरू करें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सुपर, एग्जैक्टली। या बिकॉज एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है और मुहिम आगे बढ़ जाता है। यस, मेघा जी, एक चीज ऐड करना है, व्हाट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बजरंग। थैंक यू बजरंग। पर आज भी वो लोग पीछे ऑफिस में, अविनाश, बजरंग, हितेश, सब लोग मॉडल बना रहे हैं, बांद्रा से लेके दहिसर तक का, कि जो ट्रैफिक है पूरा, वो ट्रैफिक का सॉल्यूशंस कैसे निकले। और एंटायर एरिया का हम लोग लास्ट 3-4 संडे से कर रहे हैं, और 2 अक्टूबर तक हम ये मॉडल कंप्लीट करके पब्लिक के सामने लाएंगे, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है और लीगल सॉल्यूशंस है। मैं खाली बजरंग का बात से कि सबने जागना चाहिए, क्योंकि इतना बोलना चाहूंगा कि गांधी जी के वक्त हमने मांगा था स्वराज, और हमको मिला स्वराज। स्वराज इज नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस। हम स्वराज को कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंस के साथ, बट इफ यू कन्वर्ट स्वराज, इट इज नॉट हमारा खुद का राज, माई सेल्फ गवर्नेंस। So don't depend on any government. We are not interested what is happening in Delhi or what is happening in Vidhan Sabha. Let's comes out, because what we asked for a 50 years struggles during the independent, हमारे लोगों ने स्वराज मांगा था। आज हमारा खुद का राज है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। Believe me कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। They are not our owner. They are not our God. They knows much less than me. Don't go with a few movies of fighting कि ये कोई अलग लोग है और ये हम कुछ करेंगे तो हमको उड़ा देंगे। Nothing. You ask for your rights. What Bajrang said is definitely हर मुंबईकर ने जागना चाहिए। Ask for their स्वराज now. बिल्कुल। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमने लास्ट हमारे साथ थे, उनके साथ समीर जी से बात की थी जब हमने, उन्होंने हमको बताया कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट नॉलेज होनी चाहिए, तो हम किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। तो उस चीज के देखा जाए तो आज जैसे आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शायद आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा ये 4 रिवर्स है, कि आप लोगों ने इतनी एफर्ट्स डाले हैं। थोड़े बहुत न्यूज़पेपर में लोगों ने पढ़ लिया, बट आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू और जितने लोग देख रहे हैं इस बात को शेयर करें, बताएं कि हाउ आर वी ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज वन मुंबई सिटी, जो एक सिटी है जिसके लिए सब मरते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल बोलो, बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलो, मतलब जो एक बार मुंबई में बस गया तो वो बोलते ना उसको वो रास आ जाता है। इसको छोड़ के हमारे जो लोगों ने, अरुणा जी और रिम्पल, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाया मुंबई का। आप वो प्रेजेंटेशन देखोगे, हाउ ब्यूटीफुल। हमारे जो फेस्टिवल्स है गणपति और गोविंदा, डू यू थिंक इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड? 10 लाख लोग जब रास्ते में विसर्जन में होते हैं, और एक हवालदार भी किधर दिखता नहीं है। द सेल्फ कंट्रोल क्राउड, इतना बड़ा पिरामिड रोड पे जब लगता है, 12 टायर्स का, 15 टायर्स की पिरामिड्स लगते, नोवेयर। जो ईद और जो नवरात्रि और जो क्रिसमस ये सिटी में है, वो कहीं पे है क्या? वो जुस्सा जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मॉर्निंग में आ जाता है, या बाढ़ के तुरंत बाद जो लोग खड़े हो जाते हैं। सो इतना सब कुछ कोरोना में भी हो गया, बट सिटी ऑलवेज फाइट बैक। सो दैट्स द लव ऑफ द पीपल विद द सिटी। बिल्कुल, वो जज्बा है लोगों के अंदर, एक वो है ना कि जोश है कि हम करेंगे, हम कर कुछ दिखाएंगे। बेसिक एज अ प्रोफेशनल आई एम वर्किंग अक्रॉस द इंडिया, फ्रॉम चंडीगढ़ टू चेन्नई, फ्रॉम कच्छ टू कोलकाता। पर जो जज्बा मुंबई का है, वो आपको वही बाहर के लोग ही आके मुंबई में काम करते हैं, पर जो जज्बा मुंबई में आके बनता है वो वहां पे नहीं बनता।
बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुंबई सिटी कभी सोती ही नहीं है रात को। हम सोने ही नहीं देते। हाँ, और देखिए जो सोता है उनको उठा देते हैं। यस, हम किसी को सोने नहीं देंगे। तो ये है जज्बा, और जितने लोग देख रहे हैं इस जज्बे को सलाम मैं करती हूँ, और सब लोग जो देख रहे हो जरूर कर रहे होंगे सलाम, कि मुंबई के बारे में कोई इतना सोच रहा है। अब मैं चाहूंगी कि आपके एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ जाए। बजरंग जी, थैंक यू सो मच। मैं महेश थवानी जी को बुलाना चाहूंगी, जो गोपाल जवेरी जी के दोस्त हैं, और आप लोगों की एक टीम है जो मिलके काम कर रही है इस रिवर मार्च में, या आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जीरो स्लम मार्च। तो महेश जी, क्या आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे प्लीज? अब नमस्कार महेश जी। हेलो। हाँ जी सर, हमारी तरफ से ही कॉल होगा, आप जुड़ जाइए बस। नमस्कार जी। नमस्कार मेघा जी, and nice attending this program which is very inspiring for every मुंबई का। और गोपाल जी न सिर्फ हमारा हीरो है, but he is our mentor, he is our guide, he is a leader, he is very passionate person। और उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए, देश के लिए, मुंबई के लिए स्पेशली, जैसे रिवर है ये है, सोचा है। और वो सोच वेरी इंस्पायरिंग है। मैं 2011 में दिसंबर में आया, मैं गल्फ में था, तो यहाँ आके रहे तो किसी को जानते नहीं थे। सो ही वाज वन ऑफ द पर्सन whom I got so close। पहले ग्रीन टीम में थे, उनसे साथ फिर वो मैराथन रन किया उनके साथ। वो ट्रेनिंग में हम जाते थे कांदेवली में, इनके गाड़ी बाड़ी में मैं चला जाता था, मैं तो बेकार हूँ। तो वहाँ हम सीखे, हमने 2 हाफ मैराथन की, ओनली बिकॉज ऑफ हिम, हिज इंस्पिरेशन एंड टीम। एंड देन वही रिवर मार्च पे हम जुड़े। तो आनंद उदेशी जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो हम लोग कैमरा उठा के जाते थे कि ये जब डॉक्यूमेंट्री बन गई तो फिर उसको कैसे चलाएं। तो ये रिवर मार्च, दांडी मार्च हुआ, तो इनके साथ हम जुड़े हुए हैं तब से। एंड इट रियली इंस्पायरिंग एंड इट्स अ हार्ड वर्क, हार्ड थिंकिंग। मतलब इतना जो सोच है, वो सोच बड़ी चीज है, क्योंकि जब तक सोच नहीं तो आगे कैसे बढ़े। मेघा तो जी, गोपाल जी का एक ये है चीज कि बोलना बीच में, 1 मिनट महेश जी। ये सोच तो कोई भी ला सकता है, पर जो सपोर्ट था महेश जी का, सी वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। रात को 2 बजे भी बुलाओ तो फोन करके आ जाते थे। एक सोच के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टेड बाय महेश जी। मतलब क्या था कि किसी भी ऑफिस में जाना है तो बाकी के सब लोग काम पे होते थे, महेश जी बोलते मैं बेकार हूँ, रिटायर्ड हूँ। पर अगर वो बेकार नहीं होते तो ये काम भी नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लास्ट 9 साल में, क्योंकि सुबह 10 बजे सब लोग ऑफिस में होते हैं और मेरे को अगर कोई ऑफिसर ने मीटिंग के लिए बुलाया, पुलिस वाले ने बुलाया या फॉरेस्ट वाले ने बुलाया, तो महेश जी सबसे पहले आके साथ में खड़े रहते थे। सो दैट वाज अ ग्रेट सपोर्ट बाय महेश जी। थैंक यू महेश जी। महेश जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करेंगे प्लीज? 1 मिनट महेश जी, अनम्यूट कर देंगे? एक अनम्यूट का बटन, आई थिंक ही इज टॉकिंग, जरा उनको मैं बता देती हूँ। वो हाँ जी अमेज़न सर, वाला आप कुछ है, 2 मिनट आप हमको देंगे, 2 मिनट। आप 3 मिनट ले लीजिए सर, हमारे पास गोपाल जवेरी जी है, उनके I'll बारे come में back. बोलते ही रहते, वो बोलते ही रहते। बोलते नहीं रहते, आपके पास इतना कंटेंट है लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए। बिकॉज सर सीरियसली बोल रही हूँ, जैसे आई एम स्टे इन चारकोप, यहाँ पर पूरा मैंग्रोव एरिया है। तो हम लोगों ने यहाँ बोलते ना प्लांटेशन भी किया है। मिली जी है जो हमारे यहाँ के एक्टिविस्ट है, शी हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ गुड जॉब। हमारे एरिया में ना ये लोटस का पॉन्ड है पूरा पीछे, अगर आप आए हैं इधर चारकोप। मैं बहुत बार आया हूँ, मिली जी ने बहुत बार इनवाइट किया है। तो वो पॉन्ड कितना ब्यूटिफाई कर दिया था क्लीन करने के बाद, इतना वहां का एरिया, वहां पर बर्ड्स जो आती हैं। तो ऐसा हमारा एक होता ना कि एक हम वो बनाए एक ऐसा शहर है। आप चारकोप में रहते हैं, आपको टार्जन हिल तो पता होगा। मैं सर टर्जन पॉइंट पे ही रहती हूँ। अभी आप गए कभी हिल पे?
हिल पे नहीं गई सर, पीछे वहां पॉइंट तक गई। हाँ, पर हिल के बारे में आप पता लगाइए। वो हिल को 3 जगह से पानी है और एक जगह से तालाब है, तो वो हिल आइलैंड है पूरी। मैंने और फोटोज देखे, मिली जी ने डाले थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर सांप, स्नेक्स की, रेप्टाइल्स की ऐसी स्पीसीज है जो वर्ल्ड में किधर नहीं है। सोचिए इतना अच्छा टार्जन पॉइंट है, और उसको कंजर्व करना, क्योंकि आज अगर उसको हम कंजर्व नहीं करेंगे तो दैट, और उसको जो अदर एंड से जो टच हो रहा है वो दहिसर रिवर का जो क्रिक का पार्ट है, वो टार्जन हिल को टच हो रहा है। बिल्कुल। तो वही बोल रही हूँ ना कि लोग, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी जगह हैं, लोगों को पता ही नहीं है। मुंबई इटसेल्फ में, मैं बोलती हूँ लोग आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, मैं बोलती हूँ मुंबई में ही खोज करेंगे, और जहां पर गोपाल जवेरी जी हैं वो तो हमको अवेयरनेस दे ही देंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये आप बता रहे हैं स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, आई डोंट थिंक पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। हमारा एक प्रोग्राम है जो अभी तो बंद है लॉकडाउन की, संडे मॉर्निंग एट 6:30। अच्छा जी। हर मंथ में एक संडे हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं जाते। जैसे कि मुंबई के अंदर 11 फोर्ट है। 11 फोर्ट? मुंबई लिमिट के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वसई फोर्ट और घोड़बंदर फोर्ट। मुंबई के अंदर सिवरी फोर्ट है, सायन फोर्ट है, बैंड्रा फोर्ट है, धारावी फोर्ट है, मड में फोर्ट है, वर्सोवा में फोर्ट है, वर्ली में फोर्ट है। तो ये सारे जो किले हैं, हम एक एक करके किलों को विजिट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको गिलबर्ट हिल के बारे में बोला। मुंबई के अंदर जो केव्स है, अपार्ट ऑफ एलिफेंटा केव्स और कैनेरी केव्स, महालक्ष्मी केव जो अपन जो महालक्ष्मी केव्स रोड बोलते हैं, वहां इतनी ब्यूटीफुल केव्स है और वेल मेंटेन केव्स है। जोगेश्वरी केव्स है, मंडपेश्वर केव्स है। ये सब 3000-2500 साल पुरानी केव्स जो सिटी के पास है। हम लोग बाकी सिटीज की बात करते हैं, लंदन और पेरिस और स्पेन की सिटीज की। हमारी सिटी अपने आप में एक इतना बड़ा वंडर है। गोपाल जवेरी कुछ नहीं बोल रहा है, मुंबई के पास ही उतना है कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंबई के पास ही खजाना है। तो ये सारी जो केव्स है, फोर्ट्स है, 11 बीचेस है। अब हम लोग ने बहुत सारी कोशिश के बाद 5 एसटीपी बड़े प्लांट्स आ रहे मुंबई में, जिसमें से बड़ा एक प्लांट कोलाबा का आज बन के रेडी है, चालू हो चुका है। ये एसटीपी प्लांट पूरा कोलाबा एरिया का एट प्रेजेंट पूरा मुंबई और नवी मुंबई और आजू बाजू की म्युनिसिपैलिटी का जो सीवर था डायरेक्टली समुद्र में जाता था। 4 करोड़ लोगों का सीवर समुद्र में जा रहा है फिलहाल। उसमें हमारी डिमांड थी कि एटलीस्ट मुंबई का जो सीवर है उसको ट्रीट होके जाना चाहिए, और फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लांट कोलाबा में बन के रेडी है। मार्च 2nd या 3rd वीक में वो चालू हुआ, मैं खुद देख के आया हूँ। ये प्लांट में 6-6.5 लाख लोगों का सीवर ट्रीट होके अभी समुद्र में जाएगा। इट इज एज इक्वल टू पोर्टेबल। फ्रेंच कंपनी ने पूरा प्लांट बनाया, ब्यूटीफुल प्लांट। आपको एक जरा सा भी सीवर की स्मेल नहीं आएगी प्लांट के अंदर, इतना ब्यूटीफुली। और 2 आदमी 1 एकड़ का प्लांट मैनेज कर रहे, कंप्लीटली कंप्यूटराइज सीवर मैनेजमेंट प्लांट है। वैसे 5 प्लांट और आने हैं मुंबई में जो 2023 तक, आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी 2025, पर 2025 तक या 2030 तक भी आ जावे तो मुंबई के जो आजू बाजू के कंप्लीट 11 बीचेस है, इट विल बी लुक लाइक जो आप फुकेत में जा रहे हो या हवाई बीचेस पे जा रहे हो। मुंबई जू बीच, गिरगांव चौपाटी, आक्सा मठ is equal to as beautiful as all that beaches. So let's hope कि वो भी बाकी के 4 plants which municipality is spending around 3,000 crores on this now, which is already past designed completely. So ये भी continuous effort and demands by the river march, तो ये भी areas आज बनने जा रहा है। सर ये देख के तो जितने लोग बाहर है मुंबई के, मतलब मुंबई एज अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट है ही, बट मेरे हिसाब से और बढ़ जाएगा। मतलब नॉट ओनली बॉलीवुड सिटी, इट विल बी नेचुरल ब्यूटी। यस यस, बॉलीवुड कुछ भी नहीं है। अगर आप मुंबई को राइट वे से, राइट चश्मे से देखो तो बॉलीवुड तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। क्योंकि आज अगर वाराणसी दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्पल का सिटी है, टेम्पल सिटी बोलते हैं, और मुंबई इज द ओनली रिलीजियस सिटी
जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को छोड़ के फायर टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, जूइश टेम्पल है, चाइनीज टेम्पल है। दुनिया के कोई ऐसे रिलीजन नहीं है जो इस सिटी में नहीं है। तो इट इज अ सिटी ऑफ नॉट ओनली ऑफ केव्स और द फोर्ट, बट इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट सिटी ऑफ रिलीजन। और उससे भी ज्यादा मैं मेगा जी अगर बताऊं तो ये दुनिया का एक शहर है हिंदुस्तान का जो लोगों ने बनाया। दिल्ली मुगलों ने बनाया होगा, पूना मराठाओं ने बनाया होगा, कहीं कुछ पेशवाओं ने बनाया होगा, पर मुंबई तो लोगों ने बनाया। ये किसने बनाया? ये बनाया चाय वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, भेल वाला, जो भी वाला है, सब लोगों ने मिलकर ये सिटी को बनाया। और आज ये हिंदुस्तान को 34% इनकम टैक्स दे रहा है और रेलवे को 28% रेवेन्यू दे रहा है। और मुंबई, हिंदुस्तान का 50% एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है और हिंदुस्तान की 0.0001% ऑफ लैंड हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। बाकी कितना कुछ मुंबई कर्ज दे रहा है। और उसके सामने हमको स्लम्स को छोड़ के जो बात हो रही है कि भाई जीरो स्लम्स ऑफ मुंबई कैसे पॉसिबल है, तो एक ही चीज है कि 1965 में सिंगापुर ने क्या किया है, 1935 में न्यूयॉर्क ने क्या किया। हमने कुछ नया नहीं डिमांड करना। 18 लाख फैमिली, मतलब 65 लाख लोग जो स्लम में रह रहे, अगर उसको घर दे दो तो क्या खर्चा आएगा? खर्चा आता है 1,50,000 करोड़ रुपया। 1,50,000 करोड़ मतलब बॉम्बे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। आज 1,50,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ रुपया तो म्युनिसिपैलिटी का फिक्स डिपॉजिट में पड़ा। उसके बाद बाकी का जो पैसा है उसमें से अगर आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, उसमें से आपको जीएसटी आता है, आपको इनकम टैक्स आता है, वापस से वो पैसा घूमता है मार्केट में। 30% तो आप टैक्सेशन से निकाल सकते हो। तो 1,50,000 का निकाल दो तो आपके पास 1,00,000 करोड़ को ही खर्चा करना है, उसमें से 60,000 करोड़ तो आपके पास पड़ा है। 40,000 करोड़ में आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, आपके पास माड़ा है, आपके पास एमएमआरडी है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके पास वर्ल्ड बैंक है। आप डिमांड करोगे तो नागालैंड से भी मुंबई में लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा, पर देयर इज अ नो थॉट ऑन दैट। तो आज आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुंबई कैन ओनली रिवाइव इफ वी रिवाइव द लाइफ ऑफ मुंबईकर्स, दैट इज जीरो स्लम। जीरो स्लम इज नॉट अ प्रोजेक्ट कि आप खाली एक सुंदर मुंबई या एक आर्किटेक्चरल थॉट है। इट इज ऑल अबाउट द, मैंने जो बात किया कि वो कचरा वाला, रिक्शा वाला और दूध वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ दैट पीपल। क्योंकि वो जो 22 लोग जो एवरी डे अपनी बलि दे रहे हैं लोकल से गिर के, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑटोमाइजेशन ऑफ डोर हम लोकल ट्रेन का करेंगे, हुआ नहीं है। वो किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा। एवरी डे 22 पीपल आर डाइंग। तो आज हमने मुंबई मेट्रो मिस करके एक जो प्रोग्राम किया था, उसमें भी जो मेट्रो को स्पीड दिलाने के लिए, वेलोसिटी दिलाने के लिए हमने कोर्ट तक, बॉम्बे हाई कोर्ट तक फाइट किया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जब तक आप मुंबई कर की डिग्निटी की बात नहीं करोगे, मुंबई कर का वो रिक्शा वाले को कोई लेना देना नहीं है कि आपको अच्छे रोड्स है या नहीं है। उसको तो वो 18 रुपए में उसकी लाइफ में क्या है, तो पाव वड़ा है या एक मिसल पाव है, उसमें ना प्रोटीन है ना विटामिन है ना सोने को अच्छी जगह है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिग्निटी ऑफ द पीपल, देन द मुंबई मार्च और द मुंबई ओलंपिक कैन बी सक्सेसफुल। जो हमने आजादी मांगी थी उसका जो मायना है वो ये डिग्निटी के बिना नहीं आ सकता लोग। So basically, sir, this is all about upgrading the environment और good infrastructure in Mumbai जो बन जाए तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाए इन सारे लोगों के लिए। True. तो सर मुझे एक था, जैसे आपने बताया था कि एवरी रिलीजन इज अप्रिशिएटेड इन मुंबई। आपने बताया ये सारी धर्म के या सब तरफ के लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, या हर, जैसे आपने बोला टेम्पल्स हैं, हमारे पास मॉस्क्स हैं, तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस जब हम देते हैं तो उसको एक कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स वगैरह आप फॉलो करने वाले हैं इस बारे में कि कुछ आप बोलते ना, एनीथिंग व्हिच यू विल बी क्रिएटिंग? ऐसे फिलहाल तो हम लोग एग्जीबिशंस, छोटे गाने, सोशल मीडिया, स्कूल्स में जाके लेक्चर्स देना या स्कूल्स में एग्जीबिशंस रखना, जो पॉसिबल वे कुछ कॉम्पिटिशंस रखना ड्राइंग्स बच्चों के लिए,
या अवेयर करना ऑफिसर्स लोगों के साथ मीटिंग करके। दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारे पास कोई राइट की है नहीं इसके लिए कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे, बिकॉज इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है कि वी डोंट वांट टू क्रिएट एनजीओ एंड टेकिंग मनी फ्रॉम एनीबॉडी। अगर लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो लोग ओनरशिप होगी तो ही चीज बनेगी। बाकी हमारे पास अगर कोई कॉर्पोरेट फंड आवे और एक सीएसआर लेके हम बड़ा कैंपेनिंग चला रहे, ये कैंपेनिंग नहीं हो सकता। ये दिल की बात है, दिल से लोग जुड़ने चाहिए। कोई हमको प्रोडक्ट सेल नहीं करना। हमारा किसी का भी इसमें ऐसा नहीं कि मेरा होटल है और कोई आने वाला है, टूरिज्म बढ़ेगा तो मेरे को फायदा है, या मैं कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर है, या मेरे को कोई स्लम्स का बिल्डिंग डिजाइन करना है, मैं कोई बिल्डर, नथिंग। हमको सिर्फ मुंबई के लोगों की डिग्निटी के लिए, ये लोगों की लाइफ के लिए। तो हमें कोई राइट वे तो नहीं है, बस जो लोग सुझाए, अगर आप हमको कोई आइडिया देंगे तो हम उस पर भी काम। तो बेसिकली मासेस पे रीच करना चाहिए जो प्रोजेक्ट है which you have planned and which is really very good, and शायद ये हो गया तो मुंबई क्या बन जाएगा। शायद एक मतलब बोलते हैं ना, फॉरेन कंट्री जाने की जरूरत नहीं है, सारी विजिट्स पहले मुंबई में होंगे। यस, तो हम और शायद नहीं, ये होगा ही जरूर, हम रहे ना तुम, पर कारवा तो चलते रहेगा। और मेरा बहुत ही बड़ा विश्वास है कि मुंबई सिटी ऑफ 7 आइलैंड, तो सात जो होता है ना वो कभी डाई नहीं होता है। वो 7 सुर और संगीत के, 7 कॉन्टिनेंट हो, 7 अजूबे हो, या 7 तारे हो, ये हमेशा रहते ही है। सो हम रहे ना तुम, पर मुंबई तो जरूर रहेगा। और डेफिनेटली एक दिन ये दुनिया का एक ताज रहे होगा, जरूर होगा। बिल्कुल होगा सर। लास्ट एपिसोड में हमारे पास थी साइकिलिस्ट फिरोजा सुरेश, वो एनवायरनमेंट के लिए इतना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो जैसे रेलवेज के लिए हमारे पास आए थे समीर जी, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट टू मेक दिस सिटी अ ब्यूटीफुल सिटी। तो आई थिंक ये जो दौर चला आ रहा है वो चलेगा, और हम रहेंगे और हम अपनी आंखों से देखेंगे। यस, मैं तो यही उम्मीद करूंगी, और एक टारगेट बना के रखते हैं, और जैसे कर सकते हैं, जैसे हम कैटरपिल्ट नेटवर्क जितना अपनी तरफ से स्प्रेड कर सकता है, प्लस जितना मीडिया या जितने ऑडियंस ये देख रहे हैं, जितना लोग मुंबई को प्यार करते हैं, वो सब करेंगे, सब जुड़ेंगे। आप एक मैसेज दीजिए ना हमारी ऑडियंस के लिए कि कैसे, और आपके क्या प्लान्स है, और कैसे हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपके कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप अवेलेबल हैं? प्लान्स तो मेनली अभी जो 2 अक्टूबर को हम लोग जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्रैफिक पे है, कि जो ट्रैफिक कंडीशंस है, तो ट्रैफिक कंडीशंस में मुंबई से बहुत सारे रोड्स है जो डीपी में ब्लॉक्ड है। और वो जो रोड ब्लॉक्ड है उसका रीजन है कि डिफरेंट एजेंसी लाइक फॉरेस्ट है, या मिलिट्री की लैंड है, या एफसीआई की लैंड है, या कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसका कनेक्टिविटी की वजह से हाईवे, एसवी रोड और लिंक रोड का अलावा भी और 3 रोड ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान 2034 के अंदर जो इम्प्लीमेंटेड है, वो 1967 से इम्प्लीमेंटेड हो नहीं पा रहा। तो उसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं कि भाई ये कैसे हम एक एक पॉइंट्स को रिजॉल्व करते जावे, डिफरेंट एजेंसीज को कनेक्ट करते जावे, और लोगों को रास्ता देवे कि जिसके अंदर जो ट्रैफिक की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करें। जब ट्रैफिक का प्रॉब्लम और रोड का रिजॉल्व होगा तो उसके साथ में बहुत सारे स्लम्स में और रिवर के पॉइंट्स पे भी हमको एक्सेस मिलेगा, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे रिवर और स्लम्स के ऊपर एक्सेस मिलना चालू होगा, तो ये दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि मुंबई कर की जो लाइफ है, जैसे लोग जुड़ना भी चाहते हैं पर 3-3 घंटा फिलहाल ट्रैफिक में पड़े हुए या ट्रेन की वजह से जो लाइफ चल रही है, मैं पहले तो लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमको फिजिकली जुड़ सके दे आर मोस्ट वेलकम। पर जो नहीं जुड़ सकते, प्लीज सपोर्ट अस ऑन सोशल मीडिया वेरेवर। जैसे मैंने बताया, आप किसी को लेके कि भाई मुंबई में क्या है, सब कुछ गूगल में अवेलेबल है, हमारे पास से ले लीजिए, हमारी वेबसाइट से ले लीजिए, हमारे फेसबुक पेज से लेके आप अवेयर करिए। इसको छोड़ के आप अगर जिस वार्ड में है, हम चाहते हैं कि मुंबई के जो भी 24 वार्ड है, हर वार्ड में एक मुंबई मार्च ग्रुप तैयार हो। आज हम लोग दहीसर, बोरीवली, कांदीवली इस एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग गोरेगांव तक है।
तो ये अगर मुलुंड, थाना, कुलाबा से लेके पूरा मुंबई को हम कनेक्ट कर पाए और हर एरिया में जो भी पॉइंट्स के ऊपर सेम कॉमन लिस्ट लेके अगर गवर्नमेंट के पास हमने डाला, एक सरप्राइज करूंगा आज सुबह की लास्ट संडे को हमने फोटोज के लिए रोड मार्च की अच्छा। एक रोड पे और हर फोटोज के आजू बाजू रंगोली बना दी अरे वाह, और उसके फोटो सोशल मीडिया पे डाले, वहां के yes, मैंने देखे। लोकल ऑफिसर्स के पास गए, लोकल जगह पे गए और हमने एक नंबर डायल किया 1916 जो अभी कोविड में तो बहुत ही कॉमन है म्युनिसिपल में, और इमीडिएटली मंडे को सिर्फ वही रोड नहीं बना पर पूरा बोरीवली दहीसर में जितने खड्डे थे सब बंद हो। सीरियसली मैंने देखा बिफोर एंड आफ्टर, तो दैट वाज अ रियल गुड एफर्ट। तो एक छोटी सी एफर्ट, आप जहां पे भी हो आपने देखा खड्डा है, आप 1916 फोन कीजिए, वो आपको कंप्लेन लेंगे, आप डॉकेट नंबर। मैं अभी चलता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले वर्ली पे चल रहा था, फुटपाथ पे, फुटपाथ टूटी हुई थी, मैंने कंप्लेंट डाली कि भाई यहाँ फुटपाथ टूटी हुई है, मैं निकल गया। फिर मेरे को 10 दिन के बाद फोन आया कि आपने जो कंप्लेंट डाली थी रिजॉल्व। चलो थैंक यू। तो आप जहां पे भी चल रहे हो, आपने जो भी देखा, आप 1916 पे कॉल कीजिए, आप वहां मेल कर दीजिए, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, पूरी दुनिया है, आप स्वराज आपका खुद का राज है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और हम लोग डेफिनेटली बिलीव करते हैं कि ऑफिसर्स आर नाइस, पॉलिटिशियंस आर नाइस, एंड लेट्स यूज देम द वे यू वांट। सही बात है सर। आमची मुंबई सब लोग Yes. बोलते तो हैं, माने तो सही। अब 1619 ना सर, 1916 1916 यस, ये एक नंबर पे जस्ट डायल करके इफ दैट पॉटहोल्स कैन बी रिकवर्ड और रीडेवलप्ड, कितना अच्छा काम हो जाएगा सर। बट पता ही नहीं होगा सर, नहीं पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 1916 पे अगर आपको कोविड का बेड भी नहीं मिलता है, आप कॉल कीजिए, आपको अच्छा। रिटर्न कॉल आएगा, दे विल डायरेक्ट, देयर इज अ गुड ह्यूमन बीइंग लाइक मी एंड यू हु इज सिटिंग ऑन द फोन, दे विल डायरेक्ट यू टू द राइट स्पेस। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, आपकी गटर नहीं हो रही है, आपका कोई ब्रिज टूटा हुआ है, आपकी फुटपाथ नहीं हो रही है, आप कोशिश तो कीजिए। बिल्कुल, एक कोशिश ही चीजें कामयाब बना देती हैं। तो मेरे हिसाब से हर एक इंसान को, जैसे मुंबई में रह रहे तो आमची मुंबई मान के आगे बढ़ जाए, और एक 1916 डायल करने में सर क्या जाता है, इतने कुछ 50 नहीं, नंबर भी फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो जब चीज अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, Yes. जो लोग नहीं करते सर। नहीं मेरे लोग, हाँ जी सर। नहीं लोग खाली बस एक नंबर डायल कीजिए, उससे बड़ा हेल्प हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमारे साथ ना हितेश जी जुड़े हैं, हितेश मिस्त्री जी, जो आपके साथ काम करते हैं। तो हम उनको लाइन पे लेना चाहेंगे और थोड़ी बातें उनसे सुने, और फिर हम आपका कीमती समय ले चुके ऑलरेडी। तो हाय हितेश। हेलो, वेलकम। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। आप आए, थैंक यू। गोपाल जी के बारे में और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने सर के साथ ज्वाइन किया था बाय प्रोफेशनली। अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो गए आप गलती से। सॉरी, मैंने गोपाल सर के साथ ज्वाइन किया था 2009 में बाय प्रोफेशनल, पर उनसे जो उनका ये सोशल वर्क में इतना इंस्पायर किया मुझे कि अनरीजन अनबेनिफिट में जितना वो सोशल वर्क कर रहे और जो नेचर के लिए कंट्री के लिए कर रहे, तो पूरा इंस्पायर करके वही रीजन है कि आज मैं उनके साथ बाय प्रोफेशनली भी ज्वाइन हूँ। वाओ, सो दिस इज हाउ गोपाल जवेरी जी इज, कि सोशल एक्टिविस्ट बना रहे थे सबको, है ना? बना नहीं, मेरे साथ जो भी आते हैं ना मेघा जी, जैसे हितेश मेरे साथ में सैटरडे संडे तो हमारा छुट्टी होता है, अभी भी वो ऑफिस में है, मॉडल बना रहे। तो जिस टाइम पे भी बोला, कभी भी सोशल वर्क का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हितेश इज ऑलवेज देयर। रात को 2 बजे भी बोलो तो आके खड़ा रहेगा, जो भी काम करना है फटाफट। और मेरा जो समझो कि मीटिंग्स भी है प्रोफेशनली और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो ही विल गेट इट डन। और मैं कहीं पे नदी साफ कर रहा हूँ, कहीं नाले में बैठा हुआ, बट he always supports. So these are the Hitesh, Mahesh ji
और बजरंग वो तो स्क्रीन पे आपने देखा, पर मैं अगर लिस्ट लेकर जाऊं तो मेरे को आपको 3 प्रोग्राम खाली वो लिस्ट के लिए लगेंगे। इतने लोग जो पीछे है, जो ये चीज को आपकी बना रहे। सीरीज चलती रहेगी हमारे साथ, इतना आपके पास है बताने के लिए। हमारा एक एपिसोड चलता है सैटरडेज को, कहिए सुनिए, ओके जिसमें हम चाहते हैं कि लोग बोले, बिकॉज सर हम रियल हीरोज को इंट्रोड्यूस करते हैं, रियल हीरोज को नहीं, तो ओके वो हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। तो जैसे आज आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम शेयर किए, ऐसे हमारा हर वीक इस प्लेटफॉर्म पे एक इंस्पिरेशन स्टोरीज लाते हैं। ओके और आपकी स्टोरी सुन के शायद पूरा मुंबई हिल जाएगा, बिकॉज सब मुंबई से बहुत प्यार करते हैं। बस मैं यही बिलीव करता हूँ कि मेरी स्टोरी में कुछ नहीं रखा, पर ये जो स्टोरी है ये उस सिटी की है जहाँ पे जो हमारा ड्रीम है कि हर आदमी का ड्रीम कंप्लीट हो। हर आदमी ये सपनों के शहर में एक सपना लेके आता है और वो वन रूम किचन के चक्कर में पूरी जिंदगी बिता देता है, उससे आगे उसके पास कुछ नहीं रहता। तो उससे आगे निकल के वो कुछ चीज करे, उसकी हैप्पीनेस हो, वो चीजों को सिटी के अंदर ही उसको यूज करे, उसकी मजा ले। कि यार दुनिया आती है, हमको लोगों को बोलती है कि मुंबई में ये हमको दिखा, और मुंबई वाले को मालूम नहीं है नेशनल पार्क किधर है, उसको मालूम नहीं है गिलबर्ट हिल किधर है। तो ये मुंबई को ही नहीं मालूम, मुंबई का कोई ही नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया में एक ही आदमी है जो रोज के 14 घंटा काम करता है, वो है मुंबई का। इतना सब कुछ देने के बाद 14 घंटा डेली अगर दुनिया की कोई सिटी काम नहीं करती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना अमेजिंग वर्क कल्चर है। सुबह आप अगर देखोगे तो आज जो मीडिया जो बाहर खड़ा है, वो लोग धूप बारिश में भी एक बाइट लेने के लिए खड़े हैं। और मेरे को मालूम है जो मीडिया वाले, मैंने लोग बोलते हैं कि मीडिया में पैसा लेके ही चीज आती है। मुंबई मार्च ने 10 पैसे का चाय भी किसी को नहीं पिला, एक भी मीडिया पर्सन। ऊपर से वो अपना चाय हमको पिला के गए। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है दुनिया में कि आप अगर सत्य का सहारा नहीं लो, सत्य का सहारा लोगे तो आपको चीज कामयाब नहीं होगी। Only the things which makes you gives you truth, the result, that is the truth. मैं मानता हूं मेरे साथ में बहुत लोग सहमत नहीं होंगे कि आज गांधी का टाइम राइट है नहीं है, पर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हो, आप स्वदेशी की बात कर रहे हो, आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो, आप स्वराज की बात कर रहे हो, तो ये सब क्या है? आप अहिंसा की क्या हम सबको मारना चालू कर दे? तो आज भी ये टॉपिक रिलेवेंट आज के दौर में है या नहीं है, ये हमको नक्की करना है। हम आज आप बताओ कि सब पॉलिटिशियंस को अगर हम मुंबई में गाली देते हैं तो ये पुलिस को पगार कौन करेगा? ये विदेश मंत्री हमारे मॉस्को में बैठ के चाइना से डील नहीं करेंगे, तो वो विदेश मंत्री हम इलेक्ट नहीं करेंगे कोई पॉलिटिशियंस को, तो वहां चाइना में डील कौन करेगा हमारे? तो देयर इज, आपने राइट वे से, और आप सबको सब कुछ बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए बनना है, जर्नलिस्ट बनना है। कौन बोलता है मेरे को पॉलिटिशियन बनना है? बिकॉज मैंने लास्ट 9 साल में इनकी भी लाइफ करीब से देखी है। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फ्रॉम द लाइफ। ठीक है, कुछ लोग पूरे हर इंडस्ट्री में, डॉक्टर्स में भी कोई लोग किडनी बेच देते हैं, पुलिस में भी कोई लोग खराब है, वकीलों में भी कोई लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे कुछ पॉलिटिशियंस होंगे। बट connect with your ward office, connect with your politicians, get them on the board. उनको नहीं मालूम है आपकी एक्सपर्टीज, उनको दो, उनके साथ में बैठ के आप नेगोशिएट करो, टाइम लो, और जो डिफरेंसेस है आपके और उसके बीच में, जो सोच के डिफरेंसेस है, जो लैंग्वेजिक डिफरेंसेस है, मैंने कुछ एरियाज में झोपड़पट्टी में काम किए। मैं आपको बताता हूँ मेघा जी कि बच्चे जो कोई शाखा के लिए, मैं कोई पार्टी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो कुछ शाखा के लिए काम करते हैं, शाखा की ऑफिस होती है, वहां पे वो बच्चे बैठते हैं, किधर से कुछ का छपरा ये वो करके 2-5 हजार रुपया वीक में ले आते हैं, सैटरडे इवनिंग दारू पीते हैं, मना नहीं है। पर यही जो बच्चे हैं, अगर कहीं एक झोपड़पट्टी में काम वाली औरत मर जाती है, उसको जलाने के लिए कोई नहीं होता, तब ये बच्चे उसी 2000 रुपये में से 1000 रुपया निकाल के
उसको जलाते आते, जब वो आधी जल जाती है ना स्मशान में, तब उसका बच्चा आके बोलता है खोली की चाबी कुठे है। तो ये वही बच्चे हैं, जब भी किसी को हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, म्युनिसिपल स्कूल में कोई एडमिट नहीं करता है, तब ये बच्चे जाके वहां चिल्लाते हैं, और कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। सही बात है। और ये अनपढ़ है या 12वीं 13वीं पढ़ के ये लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स लोकली करते हैं, इनको थोड़ा चांस मिलता है, ये शाखा प्रमुख बन जाते हैं, और यही शाखा प्रमुख एक दिन आपके कॉर्पोरेटर बनते हैं। ये पाव वड़ा से लेके जो 8वीं 9वीं में जो बच्चा एक झंडा उठाने के लिए गरीब बच्चा आया था, वो आपका शाखा प्रमुख है। वो शाखा प्रमुख एक दिन कॉर्पोरेटर बनता है, और 2 बार कॉर्पोरेटर के बाद वो आपका एमएलए होता है, और उसका नसीब चल गया तो वो मिनिस्टर बनता है। और हम लोग टीवी के सामने बैठ के चैनल चेंज करके क्या हो रहा है उसको एसी में डिस्कस करते हैं। नाउ इट इज टाइम टू कम आउट, give a 1 or 2 hours to your city, to your nation. That's the way. Only dial 1916. आपको बाकी की चीज, मैं आपको एक चीज और बोला, हमारे यहाँ कुछ बच्चे मस्ती करते हैं, खाली नंबर डायल करना है 100, अगर आपको तकलीफ है। लोग इतने डरते हैं 100, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IITians, जो 100 डायल करने को डरते, भाई तेरे पैसे से उसको पगार मिल रही पुलिस वाले को, तेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं, 100 डिटेक्ट भी नहीं होता, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जाता है, पर लोग नहीं करते। तब हिंदुस्तान में ये सारे आप देख रहे हो चीजें होती है, और फिर ये छोटे से जो गुंडे होते हैं इसमें इनको बड़ी जगह मिल जाती है। आप अगर पहले से ही 100 डायल करने की आदत लगा लो, 1916 करने की आदत लगा लो, ये चीजें नहीं हो। बिल्कुल सही। ये नंबर्स तो फ्लैश होने चाहिए सर, हर जगह, हर वेबसाइट पे और आपके पेजेस पर, जो हम लोग भी करेंगे अपनी तरफ से, बिकॉज इट इज रियली इम्पोर्टेंट। और एक डर निकाल दे 100 नंबर डायल करने का, बिकॉज अगर उससे किसी का भला होता है तो ये 3 नंबर डायल करने में मेरे को नहीं लगता किसी का कुछ जाना चाहिए। नहीं, वो अभी अविनाश ने वो मुहिम चालू की आदित्य के साथ कि हवे में बात मत करो, हुकूमत से बात करो, डोंट टॉक टू एयर, टॉक टू अथॉरिटी। यस, जब तक आप अथॉरिटी से बात नहीं करोगे, उनको भी कैसे पता चलेगा? 10,000 लोगों पे एक हवलदार है, अगर कहीं कोई लड़की की मस्ती हो रही है, कहीं कोई दारू पी रहा है या गलत काम कर रहा है, उसको उस हवलदार को 10,000 के लोगों पे क्या हो रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? वो भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान है जो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है, और उसके बीच में वो प्रोफेशनली ये काम भी कर रहा है, तो उसको आप इन्फॉर्म करो। आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि सामने आओ, सत्य का आग्रह रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी बाहर आके बैठ जावे और सत्याग्रह करे, आप सत्य का आग्रह तो रख सकते हो, 100 डायल कर, वो एक ट्वीट तो कर सकते हो, ट्विटर आपके हाथ में, एक ट्वीट कर दो अथॉरिटी को, एक ईमेल डाल दो। और 1916 या 100 आपको अपना नाम भी नहीं पूछता, वो पूछते हैं कि आपको अपना नंबर डिस्क्लोज करना है, आप मना कर दोगे तो वो नंबर भी डिस्क्लोज नहीं होता। आप बोलोगे मेरे को ये मैं कंप्लेन दे रहा हूँ, मेरे को अपना नाम नहीं देना है, तो 1916 will not ask your name. Okay. 100 will not ask your name. देखिए सर, ये बात शायद लोगों को पता ही नहीं है, तो यू कैन हाइड योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड यू कैन जस्ट डू द टास्क। ये मेरी मुंबई है क्या? मुंबई मेरी जान और आपके लिए हाजिर है, और इसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो आज गोपाल जवेरी जी के थ्रू हमने इतनी अवेयरनेस दी है आमची मुंबई के बारे में। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सर, मुझे सिर्फ यही आपसे कहना है कि ये मुहिम के साथ मेरे हिसाब से जितने लोग आज देख रहे हैं वो जरूर जुड़ेंगे। आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल्स अगर आप शेयर कर दें यहाँ पर, तो हम उन लोगों को आपसे जुड़ने को बोल सकते हैं। डेफिनेटली है ना? तो हमारा एक तो मुंबई मार्च करके है फेसबुक पे, तो उससे हम सब जुड़ सकते हैं। ये इस हमारे साइट पे सब अवेलेबल रहेगा, इंस्टाग्राम हैंडल एंड बोलते ना फेसबुक है, ट्विटर है, मुंबई मार्च के नाम से वेबसाइट्स है, मुंबई मार्च के नाम से आप सर्च कीजिए।
और आपको मिलेगा। आप मुंबई मार्च पे जुड़ सकते हैं। ओनली द थिंग इज कि आप अपने इलाके में एक मुंबई मार्च कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हर मुंबईकर को मुंबई मार्च करनी चाहिए। जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, एक नमक के खिलाफ एक आंदोलन, जिसमें हर आदमी ने अपना जो भी इनपुट था वो देना था। मुंबई के लिए आप हर एक ने जो भी छोटा, आप सोशल मीडिया पे आप 1916-100 डायल करो, आपके एरिया के प्रॉब्लम से आप लोकल कॉर्पोरेटर से जुड़ो, एमएलए से जुड़ो, एमपी से जुड़ो। जो जो प्रॉब्लम्स है उसके अथॉरिटिकल जो भी लेवल्स है उसमें टाइम लेके आप सिर्फ हफ्ते का 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा भी टाइम है। जैसे अभी महेश थवानी जी सीनियर सिटीजन, वो रिटायर्ड होके कुवैत से आए जी, और आपने जो भी हमारे लोग देखे, इट्स ऑल एज ग्रुप फ्रॉम 75 से लेके 15 साल का बच्चा भी मुंबई मार्च में इतने खुशी से। मैंने 10th पास के बच्चे जो मुंबई मार्च में काम कर रहे हैं कि भाई हमारा सोशल मीडिया में या रोड अवेयरनेस में या हॉकिंग अवेयरनेस, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पर इतने दिल से कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ बैनर्स डिजाइन करना, पोस्टर्स डिजाइन करना और डालना। मैं बोल रहा हूँ आपको मुंबई मार्च पेज पे आने की जरूरत नहीं है, आप आओ, वेलकम है। आप अपने पेज पे भी डालो, ट्रू, अपने सोशल मीडिया पे मुंबई के बारे में अवेयर करते हो कि भैया नेशनल पार्क है, 4 नदियां है। यही हमारे लिए खुश है, क्योंकि हमारे को कोई ऐसा कंटेंट्स नहीं चाहिए, हमको लोग चाहिए जो मुंबई के लिए बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, बट ऐसा लग रहा है कि आपसे और कितना जान लूं मुंबई के बारे में, जो शायद आम जनता को नहीं पता होगा। बट आई थिंक आज के लिए मैंने आपसे बहुत कुछ, आज के लिए इतना ही। पर अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में अगर कभी आपको एक एपिसोड टाइम मिले तो मुझे आपको सी वार्ड मुंबई दिखाना है, जिसके बारे में आज कुछ भी बात नहीं की। जो ओरिजिनल मुंबई है, गिरगांव, कालवा देवी, और वो जो जगह है, इट्स लाइक रियल मुंबई, जो वर्ल्ड में किधर नहीं है या लोगों को मालूम नहीं है। लोग जाना नहीं चाहते उस गिरती में कि कौन जाएगा उस एरिया में, कि गंदा एरिया है। पर वहां जो गोल्ड अंदर है, वो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज अधूरी रह गई, क्योंकि हमारे आंदन उंदेसी ऊपर चले गए और हम वो डॉक्यूमेंट्री अधूरी छोड़ दी है। हमारे पास आगे कोई बनाने वाला हो तो वेलकम है, हम सर मैं आपको जोड़ दूंगी। मेरी दोस्त है जो प्रोड्यूसर है और वो डॉक्यूमेंट्री बनाती है। थैंक यू सो मच। ये बात मुझे आपने अभी बोली है, तो मैं मतलब आफ्टर द सेशन मैं आपको देखती हूँ हम कैसे कर सकते हैं, और उनसे मैं पूछ लेती हूँ और जोड़ देते हैं सर, बिकॉज उसने और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। और हमारा एक तिंकेश जी थे, उनके ऊपर भी बनाने का उनका प्लान था, जिनके 2 हाथ, 1 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, बट फिर भी वो फिटनेस ट्रेनर है। तो, हाँ, तो उनके ऊपर उन्होंने बोला है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आपकी जो अधूरी डॉक्यूमेंट्री है, वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट। दूसरा, आपने जो बात बोली है, जो चीज अनकवर्ड रह गई है, that we should have a special episode on Mumbai as an heritage. Yeah, definitely. It's like KYC with Gopal Zaveri. Know your city. Okay, जो क्योंकि आपका सिटी ही इतना अच्छा है कि उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, मैं डेफिनेटली, मेरी नहीं है, आपकी सबकी है, हमारी सबकी है। तो आई लव टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन, लव टू शेयर द सिटी विथ यू। तो बहुत सारे ऐसे सिटी के अंदर है जो जहाँ चोर बाजार में लोग पैर नहीं रखते, या सिटी इन द नाइट, ऐसे एरियाज है जहाँ लोग जाते नहीं है। डेफिनेटली आई लव टू टॉक ऑन दैट टॉपिक whenever you. Definitely sir, definitely we will be announcing it very soon. Thank you so much. Thank you very much sir. Thank you. जय हिंद। मैं सारे ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े। ये प्रोजेक्ट को, ये इस एपिसोड को आप प्लीज शेयर करिए इफ यू लव मुंबई। जय हिंद सर। जय हिंद।